Hi students, how are you? Hope you all are fine. Today we are going to take another important topic from mass transfer operation which is related to drying. Today what we are going to see is classification of different types of dryers or classification of different types of drying operations. आइए देखते हैं. So when we talk about drying is again a simple process, and like any other process we can first of all classify drying based on the type of operation, that is whether it's a batch process or it's a continuous process. हम लोग ड्राइंग को नॉर्मल कोई भी ऑपरेशन की तरह क्लासीफाई कर सकते हैं कि ड्राइंग आइदर एक बैच प्रोसेस है या एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. Definition of batch process and continuous process is very clear, so we will not go into that. लेकिन एक चीज़ जो हमें यहाँ समझनी है when we are talking of drying in a batch process, the first and foremost thing that we need to be clear of is in a batch process all the reactants or all the material is taken in one shot, the reaction is completed or the process is completed and the products are finally taken out. लेकिन जब हम लोग बात करेंगे ड्राइंग की, as we know for drying we have a wet material and a drying media. हम लोग hot air यूज़ कर सकते हैं, might be steam we are using or whatever other media we are using. So when we are talking of batch drying, जब batch drying की हम लोग बात करते हैं, the wet solid that we are taking is in a batch, but the air or the heating media that we are using that is in continuous mode. क्योंकि हम लोग कंटिन्यूसली एयर सप्लाई लेंगे, विल बी हीटिंग दैट, रिमूविंग मॉइस्चर, और इस एयर को वी आर अगेन लीविंग इट इनटू द एटमॉस्फेयर और वी आर अगेन कंटिन्यूसली टेकिंग इन फ्रेश एयर. सो इन प्रिंसिपल व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ बैच प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ ड्राइंग, it's actually a semi-batch process where the solid that is to be dried, the wet solid, is taken in batch mode, whereas the drying media, the hot air or hot gas, is taken in a continuous mode. So batch process को हम लोग जब भी officially बताएंगे we will call it a batch process or a continuous process, but in fact technically batch process of drying has to be called semi-batch process. This is the first classification based on the mode of operation, जो बहुत simple है. The second one is the most important as far as specifically drying operation is concerned. Drying operation के लिए एक बहुत ही specific classification है जो हम लोग अब देखने जा रहे हैं. This classification is based on the mode of heating. Now in case of drying हमें पता है we are having a drying media as well as a wet solid. Now हम ये दोनों कंपोनेंट्स को किस तरह से कांटेक्ट में लेके आते हैं, दैट विल डिटरमाइन वेदर द ड्राइंग इज डायरेक्ट ड्राइंग और इट इज इनडायरेक्ट ड्राइंग. सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन डायरेक्ट ड्राइंग, जहाँ पे हमारा हीटिंग मीडिया हॉट एयर हॉट गैस को हम लोग वेट मटेरियल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में लेके आते हैं. बोथ दीज कंपोनेंट्स आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट, द प्रोसेस इज नोन एज डायरेक्ट ड्राइंग. आपका हॉट एयर हॉट गैस जो हीटिंग मीडिया है और आपका जो वेट सॉलिड है, ये दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है. सो हम लोग इसे कहेंगे डायरेक्ट हीटिंग. नाउ द सेकेंड मोड, ऑब्वियसली डायरेक्ट हीटिंग इज क्लियर, डायरेक्ट मोड इज क्लियर, ऑब्वियसली इनडायरेक्ट मोड हैज टू बी ऑब्वियस, जहाँ पे हम लोग हीटिंग मीडिया और वेट सॉलिड को डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं लाते हैं. एंड इन दैट केस द हीटिंग is done basically by the principle of conduction. Might be it is passed by radiation through infrared waves, or if it is using some dielectric media, high frequency electric field use करके अगर हो रहा है, in that case we'll call this drying to be indirect drying. मतलब अगर आपका जो हीटिंग मीडियम है वो और आपका वेट सॉलिड दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, इन दैट केस हम इस ड्राइंग को इनडायरेक्ट ड्राइंग कहेंगे. इनडायरेक्ट ड्राइंग के जो अलग अलग टाइप्स हैं वो हम लोग, इट कैन बी आइदर कंडक्शन, एक मेटल प्लेट या कोई भी सरफेस के एक तरफ आपका हीटिंग मीडियम है और दूसरी तरफ आपका वेट सॉलिड है, तो दैट हीट इज कंडक्टेड बाय द मेटल सरफेस. मेटल सरफेस हीट को कंडक्ट करके हॉट बॉडी से ड्राइंग मटेरियल तक लेके जा सकता है.
दूसरा ऑप्शन है कि आप लोग कोई रेडिएशन यूज़ कर रहे हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन यूज़ कर रहे हैं, जिससे आपका मटेरियल जो है गर्म हो रहा है एंड देन इट इज़ गेटिंग ड्राई। और तीसरा है कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करके आप मटेरियल के अंदर जो मॉइस्चर हैं, जो मॉलिक्यूल्स, उसको हीटअप करके उसको रिमूव करते हैं। So this is the second classification, and I would say the classification related to specifically drying operation, direct as well as indirect drying. There is a very small category of third type of drying, or might be some additional guidelines I would say, where the selection of dryer always depends on the nature of solid to be handled. तीसरा जो है एक क्लासिफिकेशन हम लोग स्पेसिफिकली नहीं कह सकते उसे, कुछ ऐसी गाइडलाइंस हैं कि आपको जब भी कोई ड्रायर यूज़ करना है, सो दैट ड्रायर हैज़ टू बी सिलेक्टेड। आप जो भी ड्रायर यूज़ करेंगे वो आप जो मटेरियल को ड्राई करना चाहते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रख के करना पड़ता है। लार्ज लंप्स हैं, लार्ज वुडन लॉग्स हैं, लार्ज पेपर या फिर कार्डबोर्ड के पीसेस हैं, उसको ड्राई करने के लिए जो ड्रायर आप यूज़ करते हैं, यू कैन नॉट यूज़ दैट सेम ड्रायर फॉर ड्राइंग ग्रैन्युलर पाउडर्स। स्मॉल ग्रैन्यूल्स या पाउडर्स को ड्राई करने के लिए वही चीज़ सेम यूज़ नहीं कर सकते। आप लोग स्लरी या कोई भी लिक्विड टाइप मटेरियल है उसको ड्राई करने के लिए जो ड्रायर यूज़ करते हैं, वही चीज़ आप किसी फाइन पाउडर के लिए यूज़ नहीं कर सकते। So this particular criteria is also very important when we are trying to select any particular type of dryer for drying of a solid. Drying is one of the most important mass transfer operations in chemical industry. So for selecting the most appropriate type of dryer, we need to have a very good understanding of the classification of different types of dryers. Drying chemical industry में यूज़ होने वाला बहुत ही important mass transfer operation है। इसीलिए एज अ केमिकल इंजीनियर जब भी हमें कोई प्रोसेस के लिए एक ड्राइंग इक्विपमेंट सिलेक्ट करना हो, एक ड्रायर सिलेक्ट करना हो, तो वो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़, प्रोसेस की प्रॉपर्टीज़ और अलग अलग टाइप के ड्रायर्स कौन से अवेलेबल हैं, हमारे प्रोसेस के लिए कौन सा बेस्ट होगा, वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ ड्राइंग ऑपरेशंस और ड्रायर्स बेटर। थैंक यू।